السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول لیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 25ویں ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں روشانہ واپس آ گئی ہے حویلی اور کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ لڑکیاں جاننے کے لیے بےتاب ہے کہ وہ اتنے دنوں سے کہاں تھی اور تیمور علی خان کے ساتھ واپس کیوں آئی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پچھلے والے ایپیسوڈ میں مجھے تیمور علی خان بہت اچھے لگے تھے، حالانکہ وہ اچھے ہیں نہیں، جھومر کے ساتھ ان کا رویہ بہت برا تھا۔ اور دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ لڑکیاں ادھر ادھر بکھرے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ ماہی نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں صاف کی۔ یہ مردانہ قسم کی انتہا پسندی تمہیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے روشی، مجھے آنے والے وقت سے ہول آ رہا ہے۔ چھوڑے خالہ، اب مجھے کسی تبدیلی، کسی بات کا خوف نہیں، میں بالکل پرسکون ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر باری باری لڑکیوں کو دیکھا۔ میں سونا چاہتی ہوں خالہ، بہت تھکن ہے، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، پھر باتیں کریں گے۔ ماہین کے اٹھتے ہی لڑکیاں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ماہین فجر کی نماز پڑھ کر باہر باغ میں چلی آئی۔ اسے شاید یاور علی خان کا انتظار تھا۔ وہ روشی کے متعلق سوچتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ بی بی یہ نہیں سنتا، کہتا ہے اندر آنا ہے، جس کا نام لیتا ہے وہ یہاں نہیں رہتا، پھر بھی نہیں سنتا۔ چوکیدار نے دور سے شکل دیتی انداز میں ماہین کو مخاطب کیا۔ ماہین آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پھاٹک تک آئی۔ گیٹ کھولو، بلاؤ کون ہے، اس نے چوکیدار سے کہا۔ چوکیدار نے تعمیل کی۔ دبلی پتلی دراز قامت سانولی سلونی لڑکی دھول مٹی میں اٹی اس کے سامنے تھی۔ کون ہو تم؟ ماہین نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اقبال بیگم، سب بالو بولتے ہیں، اس نے شکستہ سی کیفیت میں جواب دیا۔ کس سے ملنا چاہتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ عجیب سی یاسیت تھی لڑکے کے چہرے پر۔ متربہ سے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ ماہین تو جیسے زبردست کرنٹ لگا تھا۔ حویلی میں شاید کسی کو چند لوگوں کے علاوہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی متربہ رہتی تھی۔ یہ کون ہے جو اتنے یقین کے ساتھ متربہ کا ذکر کر رہی تھی؟ کیا لگتی ہے متربہ تمہاری؟ کس نے تمہیں بتایا کہ وہ یہاں رہتی ہے؟ ماہین کی حیرت ہنوز برقرار تھی۔ بس جی مجھے پتہ ہے وہ یہیں رہتی ہیں، دریا بستی میں، اس کے علاوہ کوئی اور حویلی نہیں ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں تم اس کی کیا لگتی ہو؟ ماہین الجھی۔ بس جی بڑی رشتہ داریاں ہیں ان سے، آپ ان سے ملوا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اندر آ جاؤ۔ ماہین اسے ساتھ لے کر چل پڑی۔ اس کا ذہن کیونکہ غیر ترتیب سوچوں میں الجھا ہوا تھا اس لیے خاموش تھی۔ بالو چلتے ہوئے حویلی کی ایک ایک شے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ماہین اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑے بہت گندے ہو رہے ہیں، بالو نے جھجکتے ہوئے قیمتی صوفے پر نظر ڈالی۔ کوئی بات نہیں، اب ایسے بھی گندے نہیں ہیں۔ وہ خود اپنے بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے اگلا اہم سوال کیا۔ کراچی سے، اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ ماہین ایک مرتبہ پھر چونک پڑی۔ کراچی سے؟ اتنی دور سے؟ تمہارا سامان وغیرہ؟ اندر ایک ٹوٹ مچی ہو تو سامان کیسا؟ وہ نڈھال سے انداز میں بولی۔ ماہین نے اس کے فصیح و بلیغ انداز پر اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ پڑھی لکھی ہو؟ جٹی ان پڑھ ہوں، مگر اب وقت پڑا ہے تو وقت ہی پڑھا رہا ہے، وہ تلخی سے ہنسی۔ اتنی دور سے سیدھی یہیں آ رہی ہو؟ ماہین کو یکدم ایک خیال آیا۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔ ایسا کرو تم نہا دھو لو، میں تمہارے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرتی ہوں۔ کپڑے وغیرہ تو تمہارے پاس ہے نہیں، میں اپنا کوئی سوٹ نکالتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں متربہ سے ملوائیں گے، فکر نہیں کرو۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ بالو اس ٹھنڈی گھنی چھاؤں جیسی لڑکی کو بغور دیکھنے لگی۔ آپ مالکن ہیں یہاں کی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، مگر دوسرے نمبر کی، وہ کوئی مناسب سا سوٹ تلاش کرتے کرتے ہنس کر بولی۔ آپ کا نام نازنین ہے؟ بالو کو عارف کی زبان سے نکلا ہوا حرف ازبر تھا۔ ماہین وارڈروب کھلی چھوڑ کر چونک کر پلٹی۔ نہیں، مگر تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ وہ الجھن بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بس نام سنا ہے، مگر آپ وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو بڑی پرانی بات ہے، وہ تو آپ سے بہت بڑی ہوں گی، بالو سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر بھی کس سے سنا تھا نام؟ تم تو کراچی میں رہتی ہو۔ ماہین کی حیرت بجا تھی۔ بس وہیں سے سنا ہے سب کچھ، وہ سادگی سے بولی۔ کس سے؟ ماہین اپنا کام بھول کر پھر سوالوں میں الجھ گئی تھی۔ عارف بھائی سے، وہ سکون سے گویا ہوئی۔ یہ کون ہے؟ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ یہاں مالکن ہیں، آپ نہیں جانتی انہیں؟ اس مرتبہ حیرت بالو کو ہوئی۔ مجھے زیادہ دن نہیں ہوئے یہاں آئے ہوئے۔ ہاں تو عارف کون ہے؟ اس نے وضاحت کے ساتھ سوال بھی کیا۔
जब आप उन्हें नहीं जानती तो बेकार है। आप मुझे मुतरबा से तो मिलवा सकती हैं, हो सकता है वो आपको बता सके। उसने आंच भरी नज़रों से माहिन की तरफ देखा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें मिलवा दूँगी। वो किसी ध्यान से चौंकी और पलटकर फिर वार्डरोब में नज़र दौड़ाने लगी। इससे पहले मुतरबा से कब मिली थी? उसने एक सूट निकाल ही लिया। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली, वो फितरी सादगी से बोली। अब क्या ज़रूरत पेश आ गई? उसने सूट उसकी तरफ बढ़ाया। ज़रूरत सी ज़रूरत है बेगम साहिबा, पूरी ज़िंदगी दाव पर लगी है। वो तल्खी से मुस्कुराई। अच्छा चलो, तुम पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर तुमसे आराम से बात होगी। 1 मिनट ठहरो। उसने 2 कदम आगे बढ़कर दीवार में नस्ब एक बटन 2-3 बार पुश किया। थोड़ी ही देर में कल्लो अंदर दाखिल हुई, गहरे फिरोज़ी सूट में मलबूस, पाजेब छनकाती हुई। जी बीबी। देखो ये बेचारी बड़ी दूर से आई है, इसे बाहर का बाथरूम दिखा दो, फिर इसे नाश्ता करा देना, ठीक? उसने कल्लो को ताकीद की। जी, पर ये कौन है? उसने अपना इस्तेजाब जाहिर कर दिया। अपने काम से काम रखो, तुम्हें उससे क्या? और हाँ सुनो, वो बालों की तरफ पलटी। यहाँ और किसी से कोई बात ना करना, जो बात हो सिर्फ मुझसे कहना, वरना तुम्हारा मसला हल होना मुश्किल है। उसने बालों को समझाया कि उसकी अपनी तमाम तर दिलचस्पी उसमें थी। यावर अली खान जीप से उतरकर बड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हुए थे। सामने ही सरस्वती नज़र आ गई। सरस्वती से उनका लहजा बरहमी के तासिर से मगलूब था। हाँ साहब। वो उनके करीब तकरीबन भागती हुई आई। नौकर लोग अपने साहब के मूड के बारे में बहुत हसास होते हैं। रोशानी कहाँ है? अपने कमरे चे साहब। यावर अली खान उसी रफ्तार से रोशी के कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे पर दस्तक बड़ी भरपूर थी। रोशी हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। कौन? दरवाज़ा खोलो। उनका लहजा निहायत गज़बनाक था। रोशी का दिल गोया धड़कना भूल गया। दरवाज़ा तो खोलना ही था। उसने तमाम तर हिम्मत यकजा करके दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। उन्होंने कोई जवाब दिए बगैर दरवाज़ा बंद कर दिया। तैमूर को कहाँ मिली थी तुम? वो अपने गुस्से को ज़ब्त नहीं कर पा रहे थे। कहीं नहीं, मैं खुद गई थी सिराय, शेरगुल खान के साथ। वो नज़रें झुकाकर कह रही थी। मतलब क्या है तुम्हारा इन हरकतों से? सीधे सीधा बात नहीं कर सकती? क्या ज़रूरत है ये ड्रामा करने की? कोई सुनने वाला हो तो कहें, वो दुख से कह रही थी। आराम से नहीं रहा जाता तुमसे? और लड़कियां नहीं हैं? तुम में क्या कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं? घर भर को अजाब में मुब्तला कर रखा है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बन गई हो। कितने दिन से इस घर के लोग सोए नहीं। बाबा साहब की ज़िंदगी मौत का सवाल पैदा हो गया। क्या तुम इतनी बच्ची और कमअकल हो कि अपने काम के नताइज का अंदाज़ा नहीं कर सकती? क्या फ़ायदा मोहब्बतों और रिश्तों का, जो किसी की खुशी व ज़िंदगी का एहसास तक ना करें? उसने रुख मोड़कर आंसू भरे लहजे में कहा। शट अप। क्या कमी है तुम्हें? बाहर निकल कर देखो, लोग पेट से पत्थर बांधे फिरते हैं और ग़ुलामी भी करते हैं। वो मज़ीद बरहम हो गए। इंसान को अपने पैदा होने पर इख्तियार नहीं, जो जहाँ पैदा होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। फिर उसका जहन उसी माहौल का आदी होता है। अगर उसे नेमतें मिलती हैं तो वो उनको अपना पैदाइशी हक़ समझकर वसूल करता है। अगर फ़ाक़े मिलते हैं तो वो अपनी बदनसीबी समझकर उसे कबूल कर लेता है। जागीरदारों में पैदा होना मेरा कसूर नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इस बात की सज़ा ज़रूर दे सकते हैं कि मेरा शऊर क्यों जागता हुआ है। मैं मतलूबा डमी क्यों नहीं हूँ? मुझे अपने होने का एहसास क्यों है? बिल्कुल बेशऊर हो तुम, नस्लों की नामूस से खेलने वाली जाहिल और बेहिस लड़की। वो गुर्राए। इक़दाम पर गौर क्यों करते हैं? वजह इक़दाम पर क्यों गौर नहीं करते? शरअ व कानून को कौन सी दफ़ा या शक है जिसके तहत औलाद इंसान में शामिल नहीं होती? अदालत किसी मज़हब की हो, रीज़न के साथ कार्रवाई शुरू करती है। ये ज़ुबान दराज़ी बेहयाई और बेअदबी है। मैं तुम्हें इस दानिश्वरी पर अवार्ड नहीं दे सकता। कान खोल कर सुन लो। काका जान इसीलिए शायद बड़ी हवेली में मिक्सअप नहीं हो सके कि मत लो ये नाम मेरे सामने। वो गज़बनाक हुए। नहीं लेती कि मुझे पता है बड़ी हवेली में अच्छों का गुजारा नहीं। रोशाने, मैं तुम्हें शूट भी कर सकता हूँ, समझी? वो इसी सब का अंदाज में गोया हुए। उस शख्स के साथ तुम्हें देखकर मेरी बर्दाश्त की तमाम ताकतें जवाब दे चुकी हैं। वो आपके? मैं नया या दोबारा पैदा नहीं हुआ हूँ। अपनी इतलात अपने पास रखो। बाबा साहब की तबीयत 1-2 रोज़ में संभल जाएगी, लिहाजा तुम अपना सूटकेस पैक रखो। आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी। मैं अपना खेत खुद काटूंगा। तुम मेरे बाप को मौत के मुंह में पहुंचाने की आखिरी हद आजमा चुकी हो। तुमने मेरी रियायतों से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अगर तुम मेरा भुगतान हो तो मैं खुद भुगतूंगा। फिर उसके बाद तुम कभी यहाँ नहीं आओगी।
तुम मेरी औलाद हो, मैं तुमसे निपटना जानता हूँ। ये बात जहन में रखते हुए तैयारी करो कि ये तुम्हारे दादा का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। माहिन को सरस्वती के ज़रिए इत्तला मिल चुकी थी, यावर अली ख़ान आ चुके हैं। ये जानकर कि वो रोशी के पास हैं, वो अफ्ता व ख़ेज़ा अपने कमरे से बाहर आकर अपने मकसूद की सिमत बढ़ी थी, मगर यावर अली ख़ान को रास्ते में पाकर ठटक कर रुक गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने कदर झिझकते हुए उनके चेहरे का भी जायज़ा लिया। वालेकुम अस्सलाम। वो बगैर रुक के आगे बढ़ते गए, वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। यावर अली ख़ान ने कमरे में दाखिल होकर शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी थी और एसी ऑन कर दिया था। पानी पिलाओ माहिन, बहुत ठंडा सा। उन्होंने बनियान उतार कर सोफ़े पर फेंका। माही ने बेडरूम फ्रिज खोलकर सबसे ठंडी बोतल तलाश की। दर हकीकत उसके हाथ पांव भूल रहे थे। आज यावर अली ख़ान फिर एक नए अंदाज में सामने आए थे। माहिन गिलास भरकर उनके सामने जा खड़ी हुई। बाबा साहब की तबीयत अब कैसी है? उन्होंने जैसे ही खाली गिलास उसके हाथ में थमाया, उसने फ़ौरन दरियाफ्त किया, ठीक है अब। मेरा कोई स्लीपिंग सूट निकाल दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। माहिन रोबोट के मानिंद वार्डरोब की सिम बढ़ी। सूट निकालते हुए उसका जहन रोशी की तरफ भटकने लगा। उसने सूट उनको थमाते हुए सोचा, ये जल्दी से लेट जाएं तो रोशी की खैरियत मालूम करने भागे। अल्लाह खैर करे, इनका मूड तो अब नॉर्मल है। उसे मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे सताने लगे। मेरा ख्याल है माहिन, तुम रोशी को आज ही ड्राइवर के साथ हरीपुर भिजवा दो, हम तो कल परसों ही जा सकेंगे। जी? उसे जैसे अचंभा हुआ। मैं नहीं चाहता वो बाबा साहब के सामने आए, इसी में सबकी बेहतरी है। अकेली? अगर कुछ नहीं करेगी अब वो स्टूपिड। उन्होंने सख्ती से उसकी बात काट दी। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी वो आराम कर रही है, थोड़ी देर में। अच्छा ऐसा करो, ये पर्दे खींच दो, अंधेरा कर दो कमरे में। थैंक्स। वो स्लीपिंग सूट उठाकर बाथरूम में चले गए। उसने पर्दे खींचे और बेडरूम से बाहर आ गई, सोचते उबलते जहन के साथ। सब लड़कियां मगमूम सूरत बनाए बैठी थी। आया तो करोगी ना रोशी? रूबी ने इंतहाई गमनाक अंदाज में पूछा। पता नहीं, उसने बड़े से सूट केस में अपने कपड़े लगाते हुए गुमसुम से अंदाज में जवाब दिया। जा क्यों रही हो? तानिया हाथों के प्याले में ठोरी टिकाए उदासी से गोया हुई। पता नहीं। क्या तुम्हारी शादी वहीं होगी? मियाँ ने अपने गरारे शरारे के तसव्वुर में डूब कर पूछा। रोशी ने कोई जवाब नहीं दिया। ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें उठा कर एक बैग में भरने लगी। उसके चेहरे पर बला का सुकून था। माहिन उसकी तैयारी के मराहिल चेक करने के लिए ख्याल से कमरे में आई थी। तैयारी हो गई रोशी? मैं काका जान से बात करना चाहती हूँ खाला। वो यहाँ हैं या हॉस्पिटल में? उसने रूबी से इस्तफसार किया। वो तो तुम्हें छोड़ने के फ़ौरन बाद दोबारा हॉस्पिटल चले गए थे, उसने जवाब दिया। कोई बात है तो बारी से कह दो, वो उधर मैसेज दे देगा, माहिन ने हल बताया। वो खामोशी से चीज़ें बैग में डालती रही। बुलवाऊँ बारी को? हो सकता है वो थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल चला जाए, माहिन ने फिर पूछा। नहीं। उसने हर एक से निगाह चुराकर बैग बंद किया और ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे खोल कर देखने लगी। बाबा, बैठकर दो चार बातें भी कर लो, अगर कुछ रह भी गया तो बाद में ले जाना। गुल्लो के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सारी बातें ही ख़त्म हो गई, कुछ याद ही नहीं आ रहा, क्या बातें करें आपा? वो मुस्कुराते हुए उनके करीब चली आई। अच्छा ये बताओ, काका जान वाला घर कैसा है? गुल्लो ने प्यार से उसके हाथ थाम लिए। अंदर से तो देखा नहीं, जिस गेस्ट रूम में मेरा क़याम था उससे अलबत्ता अंदाज़ा हो गया था कि घर अंदर से कैसा होगा। एक दफ़ा भी अंदर नहीं गई। तानिया ने ताज्जुब से उसकी बात काट दी। लगता है पप्पा और काका जान में ज़बरदस्त टेंशन है, फिर भी काका जान गुडविल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। हो सकता है उनकी वाइफ मुझसे मिसबिहेव करती, इसी खदशे के सबब उन्होंने मुझसे मिलवाया नहीं। खैर हमें क्या, हमें तो काका जान से मतलब है। हमने तो कभी फील नहीं किया कि यावर मामू और काका जान में कोई टेंशन है। काका जान का तो स्टाइल ही हमेशा से ऐसा है, हमेशा ही उनको बहुत फॉर्मल देखा है। मोना बड़ी देर से खामोश तमाशाई थी। झगड़े फसाद के तसव्वुर ही से उन्हें हौल आते थे, अमूमन रोशन पहलू निकालती थी। फिर भी हमने कभी यावर मामू और काका जान को घर के अफराद की तरह बात करते नहीं देखा। जरी भी शामिल हो गई। छोड़ें इस किस्से को, अच्छी बातें करें। अब रोशी पता नहीं कब आएगी। गुल्लो ने अपनी मखसूस बुट बारी से मौजू बदलने की कोशिश की। तुम आ जाओ, फिर बहुत देर हो जाएगी, सामान खोकर ले जाएगा। माहिन से चलने का इशारा किया। सब लड़कियां भी खड़ी हो गई। बड़ी अम्मी से नहीं मिलोगी? रूबी ने दरियाफ्त किया। रोशी ने माहिन की तरफ देखा। मिल चुकी है ये, चलो।
माहिन ने उससे नज़रें चुरा कर कहा। रोशी कमरे से बाहर निकल गई और सब उसके पीछे पीछे होली। वो सब उसके साथ पोर्च तक आई थी। उसी दम 150 पर बारी जन से पोर्च में दाखिल हुआ। पहले तो वहाँ मौजूद हजूम में कशां देखकर ठटका, फिर चाबी घुमाकर फर्श पर पाँव टिकाकर सबको बारी बारी देखने लगा। हॉस्पिटल जा रही हैं आप लोग? वो गुल्लो से मुखातिब हुआ। हमें कौन ले जाता है? जैसे वो बस हवेली के लड़कों के बाबा साहब हैं, हमारे नहीं। ये तो रोशी हरीपुर जा रही है, इसे अलविदा कहने खड़े हैं। बारी ने बुरी तरह चौंक कर जीप से टिकी रोशी की सिम देखा। सफ़ेद कॉटन के कुर्ता शलवार में मलबूस बड़ा सा सफ़ेद दुपट्टा पूरे वजूद पर फैलाए वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। यावर चचा जा रहे हैं क्या? उसने माहिन की सिम बड़ी उलझन से देखा। नहीं, फ़िलहाल सिर्फ रोशी जा रही है। सिर्फ? वो वाकई नहीं समझा। वो चाहते हैं अब रोशी वहाँ हमारे साथ रहे। माहिन ने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया। ओह, मुलाकात हो गई रोशी बीबी की यावर चचा से? वो बज़ाहिर माहिन से मुखातिब था, मगर डर पड़ता वो रोशी से कुछ खोज रहा था। हाँ, हो गई। जब ही तो माहिन ने मायने खेज़ अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। बाकी तो सब ठीक है। उसकी तशवीश सिर्फ रोशी समझ रही थी। वो बाइक से नीचे उतर कर आया। बिया, खोकर से कह दिया कि रोशी के कमरे से सामान ले आए। माहिन ने बिया से दरियाफ्त किया। जी। किसके साथ जा रही हैं रोशी बीबी? बारी ने माहिन से पूछा। ड्राइवर के साथ, माहिन ने जवाब दिया। बहुत जल्दी है क्या? वो पैंट की जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। वो नहा धोकर कपड़े बदल चुका था, जिससे जाहिर था उसे खासी देर हो गई हवेली आए हुए। हाँ शायद। चलो रोशी बैठो, घबराना नहीं, हम परसों इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, माहिन ने रोशी से कहा। रोशी पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठ गई। उसने वहाँ मौजूद लड़कियों में से किसी से बात नहीं की थी। थोड़ी देर में खोकर उसका सूटकेस और बैग ले आ गया। बारी ने चोर निगाहों से रोशी की सिम देखा तो फिर लड़कियों पर नज़र डाली। चंद सानिये कुछ सोचा, फिर बाइक से चाबी खींचकर अंदर की तरफ बढ़ गया। ये सब लड़कियां कहाँ हैं, कुछ पता है? शीनो सामने आ गई। वो रोशी बीबी को अलविदा कह रही हैं, बाहर पोर्टिको में, उसने मुख्तसरन कहा। अब कहाँ जा रही हैं मौसूफ़ा? शीनो हक्का बक्का रह गई। हरीपुर, उसने फिर अख्तिसार से काम लिया। मगर यावर मामू और ममानी तो यहीं हैं। उनकी हैरत काबिल दीद थी। यावर चचा के हुक्म पर ही रवानगी हो रही है, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। लेकिन किसके साथ जा रही है? उनकी हैरत बदस्तूर थी। ड्राइवर के साथ, वो ये कहकर आगे बढ़ा। तुम छोड़ आते, क्या यह मज़ीद ख़तरा मोल लेने वाली बात नहीं है? उनके तवील जुमले ने उसे आगे बढ़ने से रोका। अब कोई ख़तरा नहीं, आप में इत्मीनान रखे। वो जाने किस धुन में कह गया। अच्छा, उनका अंदाज़ भला का मायने खेज़ था। तुम्हारी बाखबरी पर तो हमें रश्क आता है। वो धीमे सुरों में हंस दी। बारी एकदम कॉन्शियस हो गया। बारी, अब तो वो गालिबन वहीं रहेगी। शीनो की आंखें तक मुस्कुरा रही थी। तो क्या हुआ, उनके बाप का घर है। वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुराया और तेज़ी से आगे बढ़ गया, मबादा कोई और जुमला आ जाए। शीनो मुस्कुराहट दबाते हुए बरामदे के जीने उतरने लगी। कौन है ये लड़की? आलमताब सख्त लहजे में कल्लो से मुखातिब थी। जी, वो माहिन बीबी के मिलने वाली है। और तो मुझे पता नहीं। कल्लो घिघिया रही थी। मालो राहदारी में पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठी हुई गीले बाल सुलझा रही थी। उसे यहाँ के कायदे कानून की भला क्या अदराक था। उसने बाल सुलझाने के दौरान ही बैठे बैठे सोने जवाहर से चमकती धमकती औरत को अपने हिसाब से इस हवेली की अहम शख्सियत समझते हुए सलाम कर लिया था। आलमताब के शाहाना नाजुक तबा पर उसका यह अंदाज़ बहुत गिरा गुजरा था, इसलिए लहजे में खुद ब खुद सख्ती आ गई थी। कहाँ से आई हो तुम? वो सर्द मेहरी से गोया हुई। कराची से। उसने हाथ रोक लिए। मेरा मतलब है ठहरी हुई कहाँ हो? वो जैसे चिढ़ गई। जी, सीधी यहीं आई हूँ। वो कदरे हिचकिचाई। ओह, माहिन से मुलाकात हो गई? कैसे जानती हो माहिन को? जी, वो। उसे माहिन की हिदायत याद आ गई। आप उनसे पूछ लें, उन्हें सब पता है। वो बस यही कह सकी। क्या मतलब? तुम्हें अपना नहीं पता? ताज्जुब से उनकी भवें ऊपर चढ़ गई। वो खामोश रही। बुला के लाऊं माहिन बीबी को? कल्लो ने खिदमत पेश की। नहीं, मैं खुद जा रही हूँ उनके पास। तुम भी कंघी चोटी करके वहीं आ जाना। माहिन बीबी हॉल में ही है जी। यावर खान सो रहे हैं ना? यावर कब आए? आलमताब चौंकी। बड़ी देर हो गई। आप आराम कर रही थी। रोशी बीबी को सब खुदा हाफिज़ कहकर हॉल में बैठी हुई हैं। चाय बनाने जा रही थी मैं सबके लिए। आपके लिए बनाऊं? कल्लो उनके सख्त मूड को जल्द से जल्द नर्म देखना चाह रही थी।
सभी को उनके ऑफ मूड से डर लगता था कि कसूरवार और बेकसूर सभी की शामत आ जाती थी। नहीं, वो बालों पर एक तफसीली नज़र डालकर हॉल की तरफ बढ़ गई। सब उन्हें हॉल में मौजूद पाकर एकदम संभल गई। यावर आ गए हॉस्पिटल से, क्या कह रहे थे? वो माहिन से मुखातिब हुई। कह रहे थे अब तो हालत कंट्रोल में है, फ़िक्र की कोई बात नहीं। ये लड़की कौन है? वो फ़ौरन अपने मकसद की तरफ आ गई। कौन? माहिन ने बेसाख्ता इधर उधर देखा। वो जो नहा धोकर गालिबन तुम्हारे कपड़े पहने बाहर बैठी है। वो बड़े गौर से माहिन को देख रही थी। ओह, माहिन को एकदम ध्यान आया। उसने फ़ौरन आलमताब का चेहरा देखा। उन्हें अपनी जानिब देखता पाकर बड़े एतमाद से गोया हुई। जी, हमारे जानने वाली है। जानने वाली? क्या मतलब? वो उलझ गई। कराची से आई है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता चल गया। वो बात उचक कर बोली। हमारी काम वाली है ना, उसकी बहन है। मगर यहाँ क्या करने आई है? उनकी हैरत बजा थी। अपने किसी ससुराली रिश्तेदार के यहाँ आई थी। उसका घर नहीं मिला, एहतियातन मेरा पता ले आई थी, इसलिए यहाँ चली आई है। लगता है उसके साथ कोई मसला है या उसके हालात ख़राब है। आप फ़िक्र न करें, चली जाएगी। माहिन ने बहुत संभल कर जवाब दिया। नहीं खैर, उसके यहाँ रहने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इतने नौकर, फिर उनकी आल औलाद, मुझे तो कमबख्तों की तादाद भी पता नहीं। एक ये भी हुई। वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि बिल्कुल नया चेहरा, मकामी भी नहीं लग रही थी। माहिन ने तमानत का गहरा सांस लिया। आलमताब हॉल से बाहर चली गई। कुछ सोचकर माहिन भी उठी और पीछे पीछे चल पड़ी। किचन से मुल्हिक राहदारी में बाल और कल्लो बातें बना रही थी। कल्लो, उसे नाश्ता करवा दो और सबसे ऊपर जहाँ तुम्हारा कमरा है वहाँ किसी कमरे में उसे पहुँचा दो। इतना लंबा सफ़र करके आई है, थक गई होगी। बालो, तुम नाश्ता करके आराम करो और बिल्कुल फ़िक्र न करना, तुम्हारा काम मैं कर दूँगी। बस इस बात का ध्यान रखना, जो तुमने मुझसे कहा है किसी और से ना कहना, वरना तुम्हारा काम कभी नहीं हो सकेगा और तुम्हें ऐसे ही वापस जाना होगा। फिर समझ रही हो ना मेरी बात? उसने बालो की शक्ल देखी। कल्लू वहाँ से जा चुकी थी। जी। बालो चोटी में बल डालने लगी। मुतरबा के हवाले से वो उसके लिए बहुत अहम हो गई थी। उसकी बहन बहुत अजीब और पुरअसरार अंदाज में दुनिया छोड़ गई थी। यहाँ की एक एक बात, एक एक हरकत उसे चौंकाती थी। महज यही एक बात उसे पहली बार कशा दरिया बस्ती में खींच कर लाई थी। एक बात पूछूं तुमसे? अचानक उसे ध्यान आया। जी पूछिए। बालो ने गुमसुम से अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कम उम्र लड़कियों जैसा है, लेकिन जब तुम मेरे कमरे से निकल रही थी मुझे जाने क्यों महसूस हुआ कि तुम शादीशुदा हो। माहिन की आवाज़ बहुत धीमी थी। बालो ने चौंक कर माहिन की शक्ल देखी, फिर एकदम नज़रें झुका ली। आपके कितने बच्चे हैं बेगम साहिबा? एक भी नहीं। उसने ज़्यादा लंबी बात करना मुनासिब न समझा। फिर भी आपकी निगाह। वो झिझक कर रुक गई। वो बुज़ुर्ग क्या कहते हैं कि ब्याह नहीं किया, बारातें तो देखी हैं। ये कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं। वो मैं इसलिए भी पूछ रही थी कि मुझे तुम्हारे हालात से मुकम्मल तौर पर बाखबर होना चाहिए, वरना मेरे अपने लिए मसला पैदा हो सकता है। वहाँ हमारे यहाँ कराची में एक सियानी है, माई खैरा, बड़ा अच्छा इलाज करती हैं। कितनी बे औलाद औरतें। ला हौल वला कुव्वत। तुम नाश्ता करके ऊपर आराम करो, मैं मौका मुनासिब देकर तुम्हें बुलवा लूँगी। जब तक मैं ना बुलाऊँ तुम नीचे मत आना, ठीक? उसने फितरी अंदाज में झिझक कर उसकी बात काट दी थी। ठीक है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। बालों ने कंघे से बाल निकालकर धुतकारना शुरू किया। माहिन दोबारा हॉल की सिमत बढ़ गई थी। उसने कल्लो को बालों का ख्याल रखने की हिदायत कर दी थी। उसे बस रात का इंतज़ार था। पिछली रात क्योंकि बहुत परेशान गुजरी थी, इसलिए आज रात सब जल्दी अपने कमरों में चले गए थे। यावर अली ख़ान ऑफिशियल स्टडी में मसरूफ़ थे। ये वक्त उसके लिए बेहद कठिन था कि जाने कब सोए और फिर ये कि शायद ना सोए बल्कि उसे भी जगाएं। उनके पल पल बदलते मूड का भला क्या भरोसा। कॉफ़ी बनाऊं आपके लिए? उसने यूं ही पूछ लिया था। आखिर टाइम भी तो गुजारना था। नहीं, मूड नहीं। सोना चाहो तो सो सकती हो। कल से आज तक वो बड़ी सरहद से कोई अरसा फलांग गए थे, आप से तुम पर आ गए थे। उसने महज नोटिस लिया, गहराई से नहीं सोचा, ना ही बुरा मनाया, बल्कि शायद उसे अच्छा लगा था। हकीकी कुर्बत का एहसास जाग उठा था। अक्सर औकात तो वो उसे इतने पुरतकल्लुफ़ महसूस होते थे कि लगता था कि उनके ऑफिस में बैठी हूँ। फ़िलहाल तो नींद नहीं आ रही, शायद रोशी भी जाग रही हो। फ़ोन कर लूँ उसे? क्या ज़रूरत है? इतने नखरे मत उठाओ, उसका ऑलरेडी दिमाग ख़राब है। उन्होंने कोप भरे अंदाज में कहा।
اوہو، یوں نہ کہیے، سب کی سننا چاہیے، جاتا کیا ہے؟ اب آپ موصوفہ اپنی وکالت سے میری رات کالی کریں گی؟ جائیے کر لیجیے۔ انہیں جیسے جان چھڑائی یا پھر یہ کوئی سافٹ کارنر موجود تھا۔ تھینکس۔ اس نے جانے سے پہلے فریج سے چھوٹا سا پانی کا جگ نکال کر ان کے قریب رکھا، ساتھ ہی گلاس بھی، اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ہال میں آئی تو دیکھا باری فون کرنے میں مصروف تھا۔ سرسوتی سمیٹا سمیٹائی میں مصروف تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ کل اوپر مہمان کے ساتھ باتیں بنا رہی ہے۔ صبح ہو سکتے ہیں یہ سب کام؟ تمہیں صبح سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے، سو جایا کرو، اس نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ کہاں اٹھتی ہیں یہ صبح؟ ماما بلی سے پوچھیں کس طرح اٹھاتی ہیں اسے۔ باری نے ڈائل کرنے کا عمل موقوف کیا اور ریسیور کان سے ہٹایا۔ خیریت ہے نا؟ اس نے ماہین سے استفسار کیا۔ ہاں خیریت ہے، بس وہ ایک فون کرنا تھا ہری پور روشی کو، مجھے یقین ہے وہ جاگ رہی ہوگی۔ وہ نزدیکی موڑے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی یقین ہے۔ وہ بے ساختہ انداز میں گویا ہوا تھا، مگر اپنی بے ساختگی پر شرمندہ نہیں تھا۔ ماہین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بڑی خوار ہے لڑکی، بس کرو۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ذرا ڈائل تو کرو، کہیں ریکارڈنگ تو نہیں لگی ہوئی؟ السلام علیکم، اطلاع عرض ہے اس وقت تمام لائنیں بیزی ہیں، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد ڈائل کیجیے۔ اس نے بڑے انداز سے نقل اتاری۔ باری بڑے بھرپور انداز میں ہنس دیا، پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ ماہی نے کچھ محسوس کر ہی لیا تھا۔ خوش رہنا چاہیے، اگر نہیں تو خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے بھی جواب دینے سے باز نہ آیا۔ جناب، مسز یاور علی خان مس روشانی سے بات کریں گی، نمبر مل گیا تھا۔ آ جائیے، ہولڈ کرایا ہوا ہے، بڑی خوبصورت دھن لگی ہوئی ہے۔ اس نے ماہین کو بلایا۔ چلو پہلے تم بات کر لو، حال چال پوچھ لو۔ وہ مسکراتی ہوئی قریب آ گئی۔ آپ بھی چھیڑا کریں گی؟ اس نے ریسیور ماہین کو تھما دیا۔ کیا مذائقہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور کان سے لگا لیا۔ باری وہیں بیٹھ کر اخبار الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ سو گئی تھی؟ سوری، ریلی ویری سوری۔ بائی دا وے، کیا یہ ٹرینکولائزر کا کمال ہے؟ ہمارا تو خیال تھا شاید تم تبدیلی کو محسوس کر رہی ہوگی اور جاگ رہی ہوگی۔ قدرتی نیند سو رہی تھی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ بالکل بھی ٹینس نہیں ہو۔ ویری گڈ، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ان کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نہیں، تم سے متعلق انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی؟ سچ؟ باری سے بات کرو گی؟ ماہین نے باری کی سمت دیکھا، جس نے جھکا سر اٹھا کر کوئی تاثر نہیں دیا۔ ہاں، یہیں ہال میں ہے، مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر۔ نہیں، مرضی ہے تمہاری۔ اچھا چلو اب تم سو جاؤ، مجھے تمہاری خیریت ہی معلوم کرنا تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے ریسیور اٹکا دیا۔ اچھا جناب، اب خبر لینا ہے تمہاری۔ مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی کہ روشی سرائے میں بحفاظت موجود ہے؟ مجھے جب بھابھی بیگم نے بتایا تو مجھے واقعی تم پر بہت غصہ آیا۔ تم بھی ڈرامہ کرتے ہو۔ یہ کوئی چھپانے والی بات تھی؟ وہ اپنے حقیقی چچا کے ہاں تھی، جبکہ وہ گئی ہی وہاں تھی، درمیان میں کوئی بلنڈر بھی نہیں ہے۔ پھر حالانکہ جب اس پر یہ انکشاف ہوا تھا تو اسے فوراً باری سے متعلق برا گمان نہیں کیا تھا۔ یہی دھیان آیا تھا کہ سرائے اور بڑی حویلی کے جس طرح کے تعلقات ہیں، عین ممکن ہے کہ باری وہاں اتنا انوالو نہ ہو، اور تیمور علی خان نے باری سے بھی اسی طرح روشی کی موجودگی چھپائی ہو جس طرح خود اس سے چھپائی تھی۔ اہم نکتہ تو یہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ روشی کی جو گفتگو دوپہر کو اپنی کزنس کے ساتھ ہوئی تھی، اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات پراپر نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت تو اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ یہ تو یقین تھا کہ جلد یا بدیر روشی سے حقائق معلوم ہو جائیں گے۔ وہ اسے کوئی بات زیادہ دیر چھپا نہیں سکتی۔ میں وہاں اتنا انوالو نہیں ہوں۔ وہاں اگر میرا وقت گزرتا ہے تو زیادہ تر کچہریوں کے چکر میں یا شوگر مل میں۔ کاکا جان اس طرف اکیلے ہیں، بابا صاحب کہتے ہیں تو چلا جاتا ہوں، کبھی کبھار جاگیر کا بھی کوئی کام نکل آتا ہے۔ اینڈ دیٹس آل۔ وہ مسکرا دیا۔ بڑا اعتماد تھا اس میں۔ ویسے باری، یہ تیمور علی خان کی شخصیت کچھ مسٹیریس سی نہیں ہے؟ مجھے تو بہت ہی عجائب غرائب سے محسوس ہو رہے تھے۔ یاور تو اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے۔ شاید ان کے درمیان کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے، تنازع ہے۔ کیوں؟ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یقین کیجیے میں یہاں بھی اتنا انوالو نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ وہ کسی دھیان سے چونک کر بولا تھا۔ ماہین چونکہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، اس لیے گہرا سانس لے کر ایزی ہو گئی۔ سنو باری، بنے بنائے کو نہیں بناتے۔ اس کے انداز میں شکایت تھی۔ خدا نخواستہ یہ مجال نہیں میری، آپ تو ماشاء اللہ بہت جینیس ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔
تم بھی تو کوئی نمبر ڈائل کر رہے تھے جب میں نے مداخلت کی تھی، پھر تم نے دوبارہ ڈائل نہیں کیا، کیا بھول گئے؟ ماہین نے یاد دلایا۔ نہیں، پوسٹ پون کر دیا، شاید میرا دوست سو چکا ہو۔ اس نے جیسے بات کی نہیں بلکہ اڑائی۔ دوستوں کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، ان کی ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہیں۔ ماہین نے معنی خیز انداز میں اسے نصیحت کی تھی۔ یاد رکھوں گا، وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تم سوتے کب ہو؟ جاتے جاتے وہ پلٹ آئی۔ خیریت؟ وہ الجھا۔ ویسے ہی پوچھ رہی تھی، کیونکہ ہمیشہ جاگتے ہوئے ہی ملتے ہو، وہ بولی۔ سوتا بھی ہوں مگر بڑی جلدی فریش ہو جاتا ہوں، مجھے لمبی نیند کی خواہش نہیں ہوتی ہمیشہ سے۔ اب سونے جا رہا ہوں، صبح 5 بجے اٹھ جاؤں گا، لیکن آپ کا جاگنا معنی خیز ہے۔ اب تو الحمدللہ سب خیریت ہے۔ ہاں خیر، اللہ کا شکر، ویسے ہی کبھی کبھی نیند نہیں آتی۔ اچھا شب بخیر۔ وہ باہر آ گئی۔ سرسوتی کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ سرسوتی، دیکھو اوپر سے کلو اور مہمان کو بلا لو، میں یہیں ہوں، ادھر ہی لے آؤ۔ سرسوتی ہاتھ دھو کر فوراً چلی گئی۔ ماہین فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ وہ سارا دن اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ذہن بالوں کی طرف سے نہیں ہٹ سکا تھا۔ ذہن تجسس کے ایک ہی دائرے میں گھوم رہا تھا۔ اتنی دور یہ متربہ کی تلاش میں کیوں آئی ہے؟ اس عورت کی تلاش میں جو دنیا کی نظر میں برسوں پہلے مر چکی ہے۔ اس لڑکی کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ایک بے دست و پا عورت اس کے کس کام کی؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر تانے بانے بننے لگی کہ اسے کس کس پوائنٹ پر بات کرنا ہے، اور آج ہر صورت متربہ کے راز سے پردہ اٹھانا ہے کہ ان راہوں سے گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے اسے نازنین کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ لیکن اسے حاصل کیا ہوگا؟ جو پردے میں ہے وہ پردے سے باہر آ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ کیا کر لے گی؟ شاید کوئی بڑا نقصان ہو جائے، شاید کوئی بڑا فائدہ ہو جائے کہ غیر واضح ذہن بھی تو انسان کی توانائیاں توڑتا رہتا ہے۔ انسان کو زندگی کے اگلے راستے واضح نظر آ رہے ہوں تو اس کے حال اور مستقبل کے احساس میں ایک سکون کا احساس دراتا ہے۔ ہر نقصان کے سودے ہی طے ہوں مگر ایک ذہن بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایک متوازن اور آرام دہ ماحول میں پلی پڑھی تھی۔ اسے تو معمولی سا ٹینشن بھی بھاری گزرتا تھا۔ شاید اس کی حقیقی بہن کا معاملہ نہ ہو تو وہ یہاں کسی بات کا گہرائی سے جائزہ بھی نہ لیتی۔ بس کچھ تھا جو اسے محسوس ہوتا تھا، حالانکہ جس کی سمت دیکھتی تھی وہ بڑا پاک صاف اور غیر جانبدار نظر آتا تھا، پھر بھی جانے کیا محسوس کرتی تھی۔ اسے اس احساس سے بڑی وحشت ہوتی تھی کہ یہاں ہر معاملے میں غیر ضروری رازداری برتی جاتی تھی۔ وہ تو اس سوچ کی حاصل تھی کہ جب انسان بلنڈر نہیں کرتا تو کانشیس بھی نہیں ہوتا۔ جی بی بی، اسے کلو کی آواز آئی۔ اس نے اپنے دھیان سے باہر آ کر ان کی سمت چند ثانیے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ہاں تم جاؤ کلو، آرام کرو۔ آؤ بالو، تم یہاں بیٹھو۔ سرسوتی، تم جلدی سے اپنے برتن نپٹا لو، پھر پیچھے چلنا ہے۔ کلو باہر نکل گئی، مگر چند لمحوں کے بعد الٹے قدموں اندر آئی۔ بی بی، یاور خان بلا رہے ہیں آپ کو۔ او مائی گاڈ! اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ بالکل بھی دھیان نہیں رہا کہ انہیں جاگتا چھوڑ کر آئی تھی۔ ابھی آتی ہوں، تم لوگ یہیں میرا انتظار کرو۔ یہ کون ہے جو آپ کو بلا رہے ہیں؟ بالوں نے پونی کستی ہوئی ماہین سے استفسار کیا۔ میاں ہے میرے، اور اس وقت کس کی ہمت ہو سکتی ہے بلانے کی؟ وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس چھوٹے سے دل و دماغ والی لڑکی نے کتنے رشک سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ کتنی خوش ہیں یہ، ان کا میاں ہوگا ایسا کہ یہ خوش ہوں۔ اسے جانے کیا کیا یاد آ گیا، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ ماہین بہت تیز تیز چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی تھی۔ اندر نائٹ بلب جل رہا تھا۔ جی خیریت؟ خیریت کیا؟ آرام کرو، کیا کر رہی ہو؟ فون نہیں ہوا ابھی تک؟ انہوں نے کروٹ بدل کر اس کے سمت دیکھا۔ میں ذرا ہال میں ہوں، ابھی آ کر سوتی ہوں، اس نے دروازے کے نزدیک کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ہال میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا لڑکیاں ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہو رہا، بس میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے جانے کے ارادے سے قدم بڑھائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نائٹ بلب بند کرتی جانا پلیز۔ ماہین نے نائٹ بلب آف کر دیا اور باہر آ گئی۔ بالو اور سرسوتی اس کی منتظر تھی۔ حزب ہدایت کولڈ ڈرنک کی لیٹر بوتل سرسوتی سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ چلو، اس کے سینے میں ایک آتش شوق بھڑکنے لگی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ جھومر انہیں راہداری ہی میں مل گئی۔ اس نے قدرے حیرت سے بالوں کی سمت دیکھا، جو ماہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھی، لہٰذا اس پر نوکرانی کا احتمال نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ماہین کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، بزرگوار کیسے ہیں؟ وہ عجیب سرخوشی میں مسکرا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، خطرے سے باہر ہیں۔
तुम कहाँ वीराने में चहलकदमी करती फिर रही हो? माहिन ने सजी बनी झूमर पर एक निगाह डाली। बस जी, किस्मत में यही लिखा है। वो बालों की सिम देखने लगी। क्या ये? बालों ने माहिन की सिम हिचकिचाते हुए देखा। नहीं नहीं, ये मुतरबा नहीं है। उसे देखकर तो तुम्हें बहुत दुख होगा। झूमर, मुतरबा को ले आओ अपने कमरे में, माहिन ने कहा। आज तो बहुत ही नामुमकिन है। खान बारी खुद ताला लगा कर गए हैं। उनसे चाबी कौन लाए? संख्या भी नहीं है कि सुंघा कर उठा लाएं। ओह, ये तो मसला हो गया। माहिन उलझन में पड़ गई। ये तो बेचारी दूर दराज से है, धक्के खाती मुतरबा से मिलने आई थी। सारा वज़न बेचारी पर पड़ा। वो अपने शौक़ और तजस्सुस को तो इजहार कर नहीं सकती थी। फिर अब क्या करें? वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। क्या उसे यहाँ कैद में रखा हुआ है? आरिफ भाई तो। बालू कुछ कहते कहते रुक गई। ताला तोड़ सा बीबी, सरस्वती ने खिदमत पेश की। हाँ चलो तोड़ दो, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। पहले ऐसा करो, फाटक बंद कराओ ताकि शोर बाहर ना जाए, माहिन ने कहा। लेकिन बारी, वो तो मुझ पर चढ़ाई कर देगा, झूमर ने मुंह बनाकर कहा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं इससे खुद बात कर लूँगी, माहिन ने तसल्ली दी। जाओ तुम कोई भारी सा पत्थर ले आओ, उसने सरस्वती से कहा। वो बेचारी पत्थर की तलाश में चल पड़ी। ये कहाँ से आई हैं? झूमर ने बालों की बाबत दरियाफ्त किया। कराची से, माहिन ने मुख्तसरन कहा। इतने दूर से सिर्फ मुतरबा से मिलने? झूमर को बड़ी हैरानी हुई। रिश्तेदार हो मुतरबा की? फितरी सवाल था। नहीं, उसने थके थके अंदाज में माहिन की सिम देखा। ये इनका घर है? उसने झूमर की तरफ इशारा करके माहिन से पूछा। माहिन ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। बालों ने झूमर की सिमत इस मर्तबा बड़े गौर से देखा। अंधेरे घने जंगल या वीरानों के बीचों बीच रखी कोई कंदील। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी। सबसे पहले तो यही, क्या आपके इस घर में वो बेचारी क्यों कैद है? आपका घर इतना वीरान क्यों है? और सबसे अहम ये कि मुतरबा आपकी क्या लगती है? इतना मबहूत कर देने वाला हुस्न जलवा आरा क्यों नहीं? और ये कि इतनी वीरानी व वहशत में आप कैसे हंस लेती हैं? मगर वो चुप रही। सरस्वती कुछ देर बाद हाँफती काँपती यहाँ मौजूद हुई। जल्दी करो सरस्वती, पता नहीं कितनी देर में टूटेगा। माहिन पुख्ता चट्टानी पत्थर देखकर पुरजोश हो गई। सरस्वती गोया ताले पर टूट पड़ी। कौन? मुतरबा की सोई सोई आवाज़ आई। घबराओ नहीं, हम ताला तोड़ रहे हैं, झूमर ने दोस्ताना अंदाज में तसल्ली दी। क्यों अपनी जान मुसीबत में डालती हो? भला फ़ायदा क्या है? जाओ सो जाओ। तुम्हारे मेहमान आए हैं, ज़रा सब्र करो, अभी टूट जाता है। मेहमान? उसकी हैरत आमेज़ आवाज़ आई। आवाज़ का वो खोया खोयापन उड़न छू हो गया था। 1 मिनट सब्र, अभी देख लेना। झूमर ने ताले को गौर से देखकर कामयाबी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई। वो तीनों भी बिल्कुल खामोश थी। पत्थर की ज़रब ताले पर पड़ती थी और सन्नाटे में एक आफत सी उतर आती थी। बिलाखिर ताला टूट गया। पुरानी वज़ह का भारी देसी ताला था। सरस्वती पसीने पसीने हो चुकी थी। शुक्र। झूमर, सरस्वती को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, माही ने सरस्वती का शाना थपक कर खुशी का इजहार किया और कुंडी खोलकर सबसे पहले खुद दाखिल हो गई। एक लम्हे को तो सर ही चकरा गया। सीलन और बू से कोठरी का माहौल इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त सा था। फिर झलंगा चारपाई पर मैल के कोट चढ़ा तकिया, उस पर मतजाद नहायत कम पावर का बल्ब। अस्सलाम वालेकुम बीबी, मुतरबा की आवाज़ ने उसके हवास कदरे बहाल किए। वालेकुम अस्सलाम, ये कराची से इकबाल बेगम आई हैं, तुम्हारा पूछ रही हैं, माही ने जल्दी से तारुफ कराया। इकबाल बेगम? कौन? उसने बगैर बालों को देखा जो दम बखुद से खड़ी थी। लेकिन मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। वो हैरत ज़दा थी। मैं आरिफ भाई के घर से आई हूँ, उसने बमुश्किल हलक साफ़ करके आवाज़ निकाली। ये मुतरबा है? बालों ने बड़े शशदर से अंदाज में माहिन की तरफ देखकर इस्तफसार किया। आरिफ वो ज़िंदा है? क्या लगती हो तुम आरिफ की? उसकी कोई बहन तो नहीं थी? तो क्या बीवी? वो बोलते बोलते रुक गई। माहिन के जवाब देने से पहले वो शुरू हो गई थी। बालों की हालत अजीब व गरीब हो रही थी। वो तो मुतरबा का जाने कौन सा सुनहरी सा तस्वुर लिए यहाँ आई थी। वो मुतरबा जिसके लिए वो सिर्फ शेर की ज़ुबान इस्तेमाल करता था। मैं उसकी कुछ नहीं लगती। तुमने उन्हें किसी का कुछ लगने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है? उसके अंदर तलखी सोई पड़ी थी, एकदम जाग उठी। ऐसा करो मुतरबा, झूमर के कमरे में आ जाओ। माहिन ज़्यादा देर हफ़ज़दा माहौल बर्दाश्त न कर सकी, यूँ भी आगे काम बड़ा था। झूमर, इन्हें अपने कमरे में ले आओ, वो कहती हुई बाहर आ गई और झूमर के कमरे में पहुंचकर उसने एसी की कूलिंग बढ़ा दी, दोनों ट्यूब लाइट जला दी।
100 वाट का एक बल्ब भी था, उसने वो भी जला दिया और गहरी तमान्नत भरा सांस लेकर सोफे पर ढह गई। ओह मेरे खुदा, बेचारी मुतरबा, काश मैं उसे ताज़ा हवा में ला सकूं। इसके मुकाबले में कितने खुशकिस्मत हैं वो डंगर और घोड़े जो अस्तबल में बंधे हैं। एक दुख उसकी रगो पै में उतर गया। चंद मिनटों बाद वो तीनों भी अंदर आ गई, झूमर अपने बेड पर और वो दोनों कारपेट पर दराज के करीब बैठ गई। बालो हुनूस खड़ी थी और तज़बज़ब में थी कि कहाँ बैठे। यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। इस हवेली में सबसे ज़्यादा भाईचारा तुम्हें मेरे कमरे में देखने को मिलेगा। बहन चारा भी कह सकते हैं। झूमर ने अपने मखसूस कहो के साथ अपने बेड पर बैठने का इशारा किया। माहिन को भी हंसी आ गई। बड़े दिल गुर्दे वाली थी ये झूमर। बालो ने झिझकते हुए कदम बढ़ाए और बहुत एहतियात से एक कोने पर टिक गई। फिर जैसे एकदम चौंक पड़ी। उस कोठरी में तो वो एक भूत महसूस हो रही थी, मगर ये क्या, इतने मौजू नैन नक्श जैसे कोई तस्वीर। तुम आरिफ की क्या लगती हो? मुतरबा उससे ज़्यादा बेचैन नज़र आई। तुमने उसे इस काबिल ही कहाँ छोड़ा है कि कोई उसका कुछ लगे? बालो ने उस पर एक निगाह की। कुछ नहीं, मैं तो तुमसे ये कहने आई हूँ, क्यों बर्बाद कर दिया उसे? तुम्हें मिला क्या? उसकी आवाज़ में तेज़ी थी। मुतरबा ने हैरत से उसे देखा। जब तुम उसकी कुछ नहीं लगती तो कहाँ पा लिया उसे? पाया कहाँ है, पाने के जतन है। जब वो यहाँ से गए तो तुमने उसके सामने सारे दरवाजे बंद करके क्यों न दिखा दिए? किस उम्मीद ने उन्हें आज तक तन्हा किया हुआ है? वो तल्खी से गोया हुई। मैं तो उसे हमेशा से मायूस करती रही हूँ। अगर वो सर फिरा है तो मैं क्या करूं? जो कुछ हुआ है उसके सामने हुआ है। मुतरबा ने यासियत भरे लहजे में जवाब दिया। ये आरिफ कौन है? माहिन से और ज़्यादा सब्र ना हो सका। यही हुआ करता था, ख्वाब देखने वाला मेरी तरह, एक बेवकूफ़। अगर वो हुस्न परस्त था तो भी अहमक था, बाकी न रहने वाली चीज़ का साया बनना चाहता था। मुतरबा ने अफसुर्दगी से कहा। क्या यहाँ हवेली में? माहिन ने सवाल किया। हाँ समझ लें, गांव के चंद पढ़े लिखे लड़कों में से एक था। सुनो, तुम उसके पास वापस जाना तो कह देना, जो जंजीरें उसके सामने पहनाई गई थी वो आज भी मेरे पाँव में है। वो खुशखबरियाँ जो वो पोटली में बांधे फिर रहा था, वो मेरे किसी काम की नहीं। मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम्हें दे दे। मुतरबा की आवाज़ भरा गई। बालो चौंक पड़ी। मुतरबा ने बड़ा ठीक निशाना लगाया था। वह नज़रें झुकाकर रह गई। मुझे तो बड़ी जल्दी है। मैं तो ये देखने आई थी कि वो किस आस पर हर तरफ से आंखें बंद किए बैठे हैं। बालो ने मुतरबा की बेड़ियों पर तरहम आमीज़ नज़र डाली। तुम आरिफ कर रही हो, हालांकि वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। फिर बच्चा किसका है? माहिन कहे बगैर न रह सकी। दूसरे ये कि नौवार लड़की से वो ख़ुद अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर चुकी थी और यूँ बरह रास्त अपने ज़िम्मेदारी पड़ती थी। एक तो लड़की मशकूक, दूसरे आलमताब की खोजती नज़रें। उसका इस कदर कॉन्शियस होना फितरी था। बच्चा तो मेरे खावन का है जी, आप गलत मत सोचें, बालो ने नहायत दुख से कहा। वो माहिन के अंदाज से बहुत कुछ समझ चुकी थी। फिर ये आरिफ का क्या किस्सा है? क्या वो मुतरबा? माहिन को हकीकत हाल जानने में बहुत बेचैनी थी कि मुतरबा ख़ुद एतराफ़ कर चुकी थी कि वह नाज़नीन की मुजरिम है और इसी वजह से कैद तन्हाई की सज़ा हुई है। क्या मालूम आरिफ के किस्से में क्या भेद हो, इसलिए तजस्सुस अपने कमाल पर था। वो मेरा कातिल है, मेरा खून है उसके ज़िम्मे और ये उसे पाक साफ नहीं होने दे रही। बालो चेहरा हाथों में ढाँप कर फूट फूट कर रोने लगी। झूमर, माहिन और सरस्वती हैरान परेशान बैठी रह गई। मुतरबा अलबत्ता पुरसुकून थी। तो इसे यहाँ ले आती ना, कर देती इस बेवकूफ़ को पाक साफ, उसने सपाट लहजे में बालों से कहा। मेरे उसके बीच पाबंदी वाला कोई रिश्ता कभी कायम नहीं हुआ। वो तो बहुत छोटा आदमी था और मुझे ऊँचे ख्वाब देखने की आदत थी। वो तल्ख लहजे और मुस्कुराहट से गोया हुई। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम मर गई तो तुम्हारी कब्र पर मजावरी करेगा। न खुद जीता है और न दूसरों को जीने देता है। बालों आंसू साफ करते हुए बोली। मगर तुम तो शादीशुदा हो। माहिन टोके बिना न रह सकी। उसी ने यह फंदा मेरे गले में डाला था, जब ही तो कहती हूँ वो मेरा कातिल है। बालो भराई हुई आवाज़ में बोली। तुम्हारी मियाँ से बनती नहीं। माहिन ठीक अंदाजे के करीब पहुँची। मैं बनाना नहीं चाहती, वो तड़क कर बोली। पसंद नहीं है? नहीं, निखट्टू है, मारता है, नशे करता है। बस जी, मुझे अच्छा नहीं लगता, शुरू से। बहुत बड़ा है उम्र में मुझसे। उसने आंखें रगड़ी। तो उससे क्या होता है? मेरे मियाँ भी मुझसे बहुत बड़े हैं। माहिन का अंदाज़ समझाने का था कि वो नादान लड़की साबित हो रही थी। मगर वो आपको अच्छे लगते होंगे, बालो ने बेपरवाही से कहा। हाँ खैर ये तो है। वो हंस पड़ी। तुम्हारा मियाँ क्या बदसूरत है?
جھومر جو دم بخود بیٹھی سن رہی تھی ایک دم بولی، جب دل ہی نہیں چڑھا تو کیا کریں؟ بالوں نے ناک چڑھائی۔ عادت کا کیسا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ سچ سچ۔ ماہین نے اس کی صورت بغار دیکھی۔ اتنی کم عمر اور کمیری بیوی ملی تھی، عادت تو آپ ہی اچھی ہونی تھی جی۔ بالوں نے ڈنڈی ماری۔ خیر یہ تو عادت کے لیے شرط نہیں، بڑی بڑی حسین بیویاں ہوتی ہیں مگر عادت خراب ہو تو مرد نہیں بدلتا۔ تم نے اسے بڑا دکھ دیا ہے، بے وفائی کا۔ تمہارے گھر والوں کی رضامندی ہوگی تبھی تو بارات لے کر گیا ہوگا، تمہیں اغوا تو نہیں کیا نا؟ ماہین نے کڑوا سچ بولا۔ بالوں نے گڑبڑا کر اس کی شکل دیکھی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں، اسی لیے تو شروع میں شادی سے پہلے ہی یہ بات طے کرنے کا حکم ہے تاکہ بعد میں اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو، مگر ہمارے ہاں اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ بارات والے دن رضامندی معلوم کی جاتی ہے، جب 100 آدمی دروازے پر موجود ہو، پھر لڑکی کیا کرے گی؟ اتنے اہم مقام پر شرع کو نظر انداز کیا جاتا ہے جب کئی زندگیاں داؤں پر لگی ہوتی ہیں۔ ماہین نے تعصب سے کہتے ہوئے جھومر کی طرف دیکھا جو درد مشترک کے احساس سے گمسم سی بیٹھی تھی۔ کیا عارف کا حویلی میں آنا جانا تھا؟ اس نے مطربہ سے دریافت کیا۔ اس کی ماں حویلی میں ہی رہتی تھی، اس کا باپ پٹواری تھا، بڑے خان ہی عارف کو پڑھا لکھا رہے تھے تاکہ باپ کے بعد بیٹا گدی سنبھالے۔ مطربہ نے جواب دیا کہ تمہارے اس قصے سے میری بہن کا بھی کوئی تعلق ہے؟ وہ کسی خیال سے چونکی۔ مطربہ چند ثانیے خاموش رہی۔ بس کیا کہوں، ان کا بڑا نقصان کیا ہے میں نے۔ وہ رونے لگی۔ وہ موڑ آ گیا تھا جس کے لیے ماہین نے تگ و دو شروع کی ہوئی تھی، وہ ایک دم سنبھل گئی۔ باقی آئندہ۔ ہاں جی، تو آج کا ایپیسوڈ یہیں تک کہ ہم ملیں گے کل آگے کی کہانی کے ساتھ۔ لاسٹ سین میں ہم نے دیکھا کہ دونوں کی کہانی ہی ایج ڈفرینس ہے، مطلب ماہین اور یاور علی خان کی، ساتھ ساتھ بالو اور لال خان کی، دونوں کی شادیوں میں بہت ایج کا ڈفرینس ہے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ بالو لال خان کو پسند نہیں کرتی، جہاں ماہین ہے وہ یاور کو پسند کرتی اور یاور بھی ماہین کو پسند کرتا ہے۔ تو بھلے ہی دونوں کا ایج ڈفرینس ہو لیکن ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ بالو پسند نہیں کرتی لال خان کو، حالانکہ وہ برا نہیں ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے غصے کو بھی برداشت کرتا ہے، اچھا انسان ہے، لیکن پھر بھی پسند کی بات ہے، جب وہ اس کے دل کو ہی نہیں بھاتا تو پھر کیا بات ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بالو کو قدر ہو جائے گی لال خان کی، کہ وہ بھلے ہی بہت ہی زیادہ ایج ہے اس کی لیکن وہ انسان اچھا ہے اور وہ بالوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ خیر اپنے اپنے پسند کی بات ہے۔ ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔